इंग्लिश में बात करते हैं, इट्स नॉट ओनली आवर माउथ विच इज स्पीकिंग। हमारे हाथ, दैट इज हैंड जेस्चर्स, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस और आई कांटेक्ट, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिंपल चीज़ ये करो, आई एम नॉट सेइंग कि आप डायरेक्ट लोगों से बात करो, आप अपने आप से तो इंग्लिश में बात कर सकते हो ना। व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, एंड वी डू टॉक एवरी डे, कैसी लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ, खाने में क्या खाऊँ, कहाँ जाऊँ, एक्स वाई ज़ेड थिंग, उस समय इंग्लिश में बात करो। Hi everyone, my name is Parul Raj Hans. I love seeing people working passionately for their dreams and becoming the best version of themselves. And because of the same passion, I have been working as an educator since last 3 years and have specialization in subjects like motivation, leadership, emotional intelligence and so on. Before stepping into education sector, I got the privilege of working with amazing organizations such as World Bank, United Nations India, WWF. And I also done a couple of internships with Match Project Foundation, Reaching Sky Foundation, and our very own platform, Josh Talk. I genuinely believe, as part of the society, it's our utmost responsibility at individual level to do something for the society. And I fulfill mine by conducting educational program on public speaking and body language for underprivileged children so that they can also have a bright future. So if I ask you, pause the video right away and tell me, did you like my introduction? Did you like how I spoke? And was I confident enough? I'm sure the answer of this question would be yes. However, that's not the way I used to communicate some years ago. That Parul was something different. She had no confidence in her ability. She had zero self esteem and she was suffering from inferiority complex. Those of you who are not aware what is inferiority complex is, let me take a moment and explain. It's when you constantly compare yourself with other person and demean yourself. आप अपने आप को कम आंकने लगते हो. So now what changed? Why am I speaking so confidently? Let me share a secret with you. It's because I worked on my English language. Yes, by just learning one language, I'm able to speaking well. And see, I'm confident facing the camera and I also have the courage to share my insight with you all. So in this video, what are we going to talk about? We are going to talk about my very own struggle with English language, how I overcame those struggle, and in the end, we are going to discuss some tips and tricks for becoming effective communicator. Are you ready? तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से. I was born and brought up in Delhi only. I belong to a typical low middle class family. My parents are not much educated, but they did try their best to give us best education. My mother was a homemaker and my father was working a normal job. अब नॉर्मल जॉब करके पैसा भी घर में नॉर्मल ही आता था. जैसा मैंने कहा, वी हैड ओनली वन ब्रेड विनर, दैट वाज माय फादर, एंड वी हैड फैमिली ऑफ 7. तो रिसोर्सेज कम थे. तो जहाँ रिसोर्सेज कम थे, बेसिक नेसेसिटी ही मीट नहीं हो पाती थी. इट वाज सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल थिंग कि हमें पेरेंट्स बैठ के ये बताए दैट यू हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज. एंड टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, माई पेरेंट्स वर नॉट सो इंटरेस्टेड एजुकेशन टू. नो, वो हमें डिस्करेज नहीं करते थे, बट उनके लिए इनडिफरेंट थे हमारे मार्क्स. इफ आई एम गेटिंग सी इन माई रिपोर्ट कार्ड, दे आर फाइन. इफ आई एम गेटिंग ए इन माई रिपोर्ट कार्ड, दे आर फाइन. उनके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आई डिड नॉट हैव एनी आइडल in my family so that I can look forward to that person. No one told me to work on my skills. So I did what I had to. I was going to school not for studying but to have fun with my friends. And that brings me to an important point, that choose your environment wisely. Because it's true, you become what your surrounding is. अब क्या हुआ, 12th बोर्ड आ रहे थे. अब मैंने मम्मा को बोला कि माँ, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, प्राइवेट स्कूल में तो मैं नहीं जा सकती हूँ, बट आई रियली नीड टू हैव गुड ट्यूशन क्लासेस.
सो आई रिक्वेस्ट यू टू पुट मी इन गुड ट्यूशन क्लासेस सो दैट मैं अच्छे मार्क्स लाऊं और अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिले. एंड आई प्रॉमिस्ड हर दैट आई एम गोइंग टू स्टडी सुपर हार्ड. एंड यस, आई स्टार्टेड गोइंग ट्यूशन. वहाँ पे जाके आई ऑब्जर्व्ड समथिंग डिफरेंट. द पीपल वर नॉट लाइक मी. दे वर कॉन्फिडेंट. They knew what they are doing in their life. They were from very good schools. To name a few, Father Agnes School, Delhi Public School, and Ryan International School. And I was from a typical Sarkari school girl. So clearly, I had no courage to even sit with those people. And talking, वो तो मैं भूल के भी उनसे बात करना सोच भी नहीं सकती थी. So what did I do? A mistake. I choose comfort over growth. And I hang out with people and sat with the people who were like me. पढ़ाई जम के करी, मार्क्स अच्छे आए, स्कूल में, ट्यूशन में. बट आई ऑब्जर्व समथिंग अगेन. माई कॉन्फिडेंस लेवल वॉज नॉट इंक्रीजिंग. वो तो नीचे ही जा रहा था. बट आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग. अब कॉलेज में एडमिशन हुआ बिकॉज ट्वेल्थ में मार्क्स अच्छे आए थे. सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ गार्गे कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. तो उस समय रेगुलर कॉलेज में भी एडमिशन होना बहुत बड़ी बात होती थी. तब हार्डवर्क किया था तो फ्रूट्स तो मिलने ही थे. वहाँ का क्राउड और भी ज़्यादा भयंकर. भयंकर इन द सेंस एवरी गर्ल अराउंड मी वॉज बेटर देन मी in every possible way you can imagine. Be it financial status, be the place they are coming from, be it knowledge, beauty, attire, the confidence they come in with in the class, and their communication skill was top notch. एंड वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 0 से अप नहीं और डाउन हो गया. इट वॉज नेगेटिव दिस टाइम, बिलो द ग्राउंड. एंड अगेन आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग. अब कॉलेज में भी मुझे 1 साल हो गए थे. 2018 में मैंने स्टार्ट किया था, इट वॉज 2019. एंड अब मार्क्स भी कम हो रहे थे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ. एंड आई स्टार्टेड फेसिंग difficulty in going college too because I was so disappointed with myself in every way. मुझे लगा यार एटलीस्ट मैं स्कूल में पढ़ाई तो कर लेती थी, यहाँ तो ना पढ़ाई हो पा रही है ना बात हो पा रही है. आई शेयर अ वेरी फनी मोमेंट विद यू. सो एग्जाम्स आर अप्रोचिंग एंड मैंने पहले ही जो मैम चैप्टर पढ़ाने वाली थी मैंने पढ़ लिया था. सो आई टोल्ड माई फ्रेंड पूर्वी दैट यू नो मैंने तो पहले ही पढ़ लिया है. शी सेड समथिंग और मुझे समझ नहीं उन्होंने क्या बोला. सो आई रिक्वेस्टेड हर टू say it again. And she said the word. She said the word intuition. And I had no idea what intuition is. So I understood something and I replied, no, मैंने tuition में नहीं पढ़ा, मैंने खुद से पढ़ा है. So that was my knowledge when it comes to English. One more incident. I was sitting in my class and I had no pen with me. So ऐसे situation में क्या करेगा कोई? जो बंदा next बैठा हुआ है आपके बगल में बैठा हुआ है, you will ask the pen for that person. But what did I do? I found myself sitting among elite group of people. So again, I was constantly struggling to utter a word and ask for the pen. 2 घंटे के क्लास में instead of focusing on the lecture, what was I doing? I was trying to gather the courage to ask for the pen. Simple बोलना था, can I have the pen? I'll return to you after the class. And I didn't even say that. आप लोग सोच रहे होंगे यार पेन नहीं मांगा. Yes, बिकॉज सब जब आप अपने ऊपर यकीन नहीं करते, आप ऑलरेडी अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, तो आपके मुंह से जबान से कुछ शब्द नहीं निकल सकता. क्लास में कुछ समझ नहीं आया था उस दिन. एंड अगेन डिसअपॉइंटमेंट लेवल वॉज इंक्रीजिंग डे बाई डे. उस दिन सोचा नहीं यार, आई नीड टू चेंज माई एनवायरमेंट. पढ़ाई में अच्छी हो जाऊंगी बट आई नीड टू हैव अ डिफरेंट एक्सपोजर. आई नीड टू स्टेप आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. एंड आई डिड. अब मुझे लगा कॉलेज में और क्या कर सकते हैं, चलो लेट्स बी एन पार्ट ऑफ सोसाइटीज. ऑडिशंस देना स्टार्ट करे, बी प्लेसमेंट सेल, कॉलेज यूनियन में भी अप्लाई किया मैंने. इंग्लिश हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी में हर एक जगह जाके मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया. एंड गेस व्हाट, एक भी जगह से सिलेक्शन नहीं मिला. मिलता भी कैसे? आई वॉज गोइंग एंड सिटिंग इन जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू. आई वॉज नॉट सेइंग एनी वर्ड. I was so uncomfortable with the crowd, with the staring. I was just coming back to my classes. I was not getting the idea what should I do. So I started my journey of communication my second year of college.
आई रिमेंबर मैंने बुक खरीदी थी एंड द नेम ऑफ द बुक इज हाउ टू टॉक टू एवरी वन 92 सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स. And since that day, I started reading books. And till today, I'm 26 currently. I read approx 40 books and I'm in love with the books. अब इंग्लिश के साथ साथ देर इंग्लिश बुक्स के साथ साथ देर अदर थिंग्स जो कि हमें इम्पॉर्टेंट है ध्यान देना. To become an effective communicator, it's very important to be proficient when it comes to grammar and vocabulary. अब मुझे शुरुआत से स्टार्ट करना था, ज़ीरो से स्टार्ट करना था. एंड हैव नो ashamed. When I learn something new, I really start from zero. So what did I do? ग्रामर की बेस्ट बुक मैंने परचेज करी प्राइमरी स्कूल्स की. So there's a school in Delhi named Greenfield School. I requested the teacher over there. मैंने उन्हें बोला मैम मुझे ग्रामर की बुक्स चाहिए फ्रॉम फर्स्ट टू एट्थ. आई वॉन्ट टू start from the basics of grammar and I start studying the grammar to make the concept more strong. In addition to that is a YouTube channel by the name of English Grammar by Rani Ma'am. She teaches for government examinations. However, उनके grammar के जो lectures होते हैं it's very basic and I believe मेरे knowledge में she is one of the best teachers when it comes to grammar. मैंने grammar पे ध्यान दिया बहुत अच्छे तरीके से. अब बात आई वोकैबुलरी की एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी. देयर आर सो मेनी वर्ड्स, क्या-क्या सीखे. फिर मुझे रानी मैम की वीडियो से पता चला देयर इज़ अ पर्टिकुलर ट्रिक टू लर्न वोकैबुलरी एंड व्हाट इज़ द ट्रिक? रूट वर्ड. अब रूट वर्ड क्या होता है? आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं. देयर इज़ अ वर्ड फॉर इंस्टेंस फिड, FID. इस रूट वर्ड का मतलब होता है फेथ और लॉयल्टी. नाउ अब एक रूट वर्ड से फिट से यू कैन लर्न 10 वर्ड्स इन 5 minutes. I'll give you 3 examples for the same. The first one, fidelity. Fidelity means faithfulness and loyalty. फिड वर्ड आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर वर्ड में फेथ तो होगा ही. द सेकेंड वन, इनफिडिलिटी. जहाँ पर भी इन आता है इट सिंपली मीन्स के अपोजिट की बात हो रही है. सो फिडिलिटी का मतलब था फेथफुलनेस, इनफिडिलिटी का मतलब हुआ फेथलेसनेस एंड disloyalty. The third word, if I tell you, perfidy. Perfidy means FID. फिर से वहां पर आ गया. अब यहाँ पे क्या है? फेथलेसनेस ही होगा बिकॉज फिट अपोजिट भी आएगा एंड एक्चुअल मीनिंग भी उनका साथ में आएगा. ऐसे मैंने वोकैबुलरी भी पूरी कोशिश करी कि मैं स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ. अब बात आती है रीडिंग स्किल्स की. बिकॉज कंप्लीटली ऑनेस्ट इंग्लिश सीखना भी बहुत ईजी नहीं है बट हम अपनी तरफ से प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फन ऐड कर सकते हैं उसमें. फॉर रीडिंग स्किल्स व्हाट डिड आई डू? आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स, स्पेशली हिंदी एडिटोरियल्स. बिकॉज बाय रीडिंग हिंदी एडिटोरियल्स मेरी नॉलेज भी अच्छी हो रही थी एंड एट द सेम टाइम आई वॉज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स, द सेंटेंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स. इन एडिशन टू न्यूज़पेपर आप लोग और क्या कर सकते हैं जो मैंने भी किया था? आई स्टार्टेड रीडिंग आर्टिकल्स ऑफ माई ओन चॉइस. For instance, I was reading articles of climate change, some of the history articles, some fashion articles, because I'm very much interested in those things. Now, the next and important aspect of English, listening skills. Because अब समझ आ गया था कि क्या बोलना है. Now the question is कैसे बोलना है. Because जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, it's not only our mouth which is speaking. हमारे हाथ, that is hand gestures, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस और आई कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो लिसनिंग स्किल के साथ साथ ऑब्जर्वेशन स्किल भी मैंने स्ट्रॉन्ग करी एंड सीरीज देखना स्टार्ट करा. एंड अगेन मैंने स्टार्ट करा डॉक्यूमेंट्रीज देखने से ऑफ माई ओन चॉइस बिकॉज मुझे फन ऐड करना था. मैं उसको एकदम हार्ड प्रोसेस नहीं बनाना चाह रही थी अपनी इंग्लिश की जर्नी को. आई स्टार्टेड डिवोटिंग हाफ एन आवर एवरी डे, नॉट मोर देन दैट, to understand what to speak and how to speak. And when you are speaking certain words, what should be the facial expressions, hand gestures, and how these people are pronouncing certain words. Very important. इस पे काम किया. अब बहुत सारी एप्लीकेशंस और अवेलेबल है. टू नेम ऑफ यू, जोस्टॉक की भी एक इंग्लिश की एप्लीकेशन अवेलेबल है. डुओलिंगो, इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, वो भी आप यूज कर सकते हैं. अब हमने बात करी क्या मैंने करा. अब प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर सकते हैं इंग्लिश की, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वंस यू नो सर्टेन थिंग्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस रेगुलरली टू बी इन द रिदम. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैंने गलती पास्ट में करी, आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि वो गलती आप मत करिएगा. वट वॉज द मिस्टेक? प्लीज़
be in the good environment. Make sure जो भी आपकी surrounding है, it should be good. The people around you should be supportive, should be able to tell you to aim high, and if you do any mistake, they are not demeaning you. The second important thing, before you even think about learning English, get out of your comfort zone. If we are not constantly getting out of our comfort zone, we will be at one place only, and that place is stuck. We'll be stuck in one place forever, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम और कितनी बड़ी चीज़ों के लिए बने हुए हैं. The third important thing, which we generally don't do, especially Indians, start thinking in English. So what we do, if someone is communicating to us in English, we think and form sentences in English in our brain. फिर हम थोड़ा पॉज लेके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले को. प्रोसेस गलत नहीं है, बहुत टीडियस है, और ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन इसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा. सो आप सिंपल चीज़ ये करो, आई एम नॉट सेइंग कि आप डायरेक्ट लोगों से बात करो, आप अपने आप से तो इंग्लिश में बात कर सकते हो ना. व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, एंड वी डू टॉक एवरी डे, कैसी लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ, खाने में क्या खाऊँ, कहाँ जाऊँ, XYZ थिंग, उस समय इंग्लिश में बात करो अपने आप से, एंड यू विल सी सामने वाले से जब आप इंग्लिश में बात करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में आएगा. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर प्रैक्टिस विच आई डिड, आई यूज टू रिकॉर्ड माई सेल्फ. सो सपोज आप कोई भी टॉपिक उठा लो, बीट एनीथिंग, यू कैन टॉक अबाउट योर डे, अबाउट योर मदर, अबाउट योर फादर, एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ फॉर एटलीस्ट 5 minutes. रिकॉर्ड करो, देन ऑब्जर्व योर वीडियो एंड गिव योर सेल्फ फीडबैक. अगर अपनी वीडियो नहीं देखी जाती है, ऐसा बहुत बार होता है, हमें अपनी आवाज़ भी पसंद नहीं आती है, अपनी वीडियो भी देखी नहीं जाती है, so उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, एनी वन, योर सिबलिंग्स और मे बी योर बेस्ट फ्रेंड, उनको बोलो कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखो एंड गिव मी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना हमने बंद कर दिया है. एंड लास्ट important thing which I did, there's a public speaking club named Toastmasters International. सारे सिटीज़ में क्लब्स होते हैं इनके. आई एम फ्रॉम दिल्ली, मेरी सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा हैं. सो मैंने भी प्रैक्टिस के लिए टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल का एक क्लब ज्वाइन किया था, टोस्ट मास्टर क्लब ऑफ न्यू दिल्ली, एंड इट्स बीन अप्रॉक्स 2 years since आई एसोसिएटेड विद द क्लब. जब मैंने भी क्लब ज्वाइन किया था, अगेन आई वॉज लिटरली विद ज़ीरो कॉन्फिडेंस, and with my dedication and sheer hard work, I ended up becoming the president of Toastmaster Club of New Delhi. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टोस्टमास्टर ज्वाइन करके और मे बी एनी पब्लिक स्पीकिंग क्लब ज्वाइन करके आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी बेटर हो रही है. यू विल बी एबल टू एंगेज द ऑडियंस एंड यू विल हैव दैट करिश्मा व्हेन यू आर ऑन द स्टेज, एंड पीपल विल बी रेडी टू लिसन. So these were the things. I really consider myself as an average girl. Yes, I am, and there is no shame in it. I understand things slowly, but yes, I am an extremely hardworking girl. I know the importance of consistency. I know the importance of discipline. And if you have these two things in your life, you can achieve anything. So yes, if I can learn English and communicate and be confident, you can also do that. I would like to end the video with a very powerful quote which I surely abide by. And the quote is, if you really want something in your life, you'll find a way. And if you don't, you'll find an excuse. So please, जो भी excuses है life में, उनको side में रखिए, because excuses don't build empire. And start your journey of English communication. Thank you. क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर. Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.